चलो, are you ready for the word? Are you ready? Amen. आप जोर से amen बोलेंगे तो अपन शुरू करेंगे. Are you ready? Amen. Yes, praise God. You know, आज हम लोग एक बहुत बढ़िया सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं. And you know, बहुत टाइम से the Lord has been teaching me about this, and I have been personally learning. And I would also request you, आज मैं आप सबको ये you know, I'm going to tell you that we are starting the series called as Rest. क्या है सीरीज का नाम? Rest. The name of the series is Rest. Rest का मतलब क्या है हिंदी में? आराम. ये डायलॉग सुने आप? आराम हराम है. सुने डायलॉग? आराम हराम है. सुने डायलॉग? लेकिन बाइबल क्या बोलता है? बाइबल बोलता है क्या आराम हराम है? बाइबल बोलता है. ये डायलॉग तो सुने हम लोग सब लोग. But is it from the word? No. And I believe today, okay, I'm telling you, as we start this, it's going to open so many things in your life. इतने चीज ये आपको खोलने वाला है ताकि you will practically see, the word is very practical. Okay, the word is very practical. It's not just अच्छे दिन आएंगे आएंगे. You know, it's like स्वर्ग में जाके you are going to enjoy. स्वर्ग में जाके आनंद बनाओ. स्वर्ग में जाके खुशियां बनाओ. इधर कैसे भी कष्ट में निकालो. इधर कैसे भी निकालो दुख में. स्वर्ग में आनंद बनाएंगे. अगर सुनते रहेंगे तो उसके लोगों को क्या चाहिए फिर ये सुनने के बाद ये डायलॉग? अगर मैं बोलूंगा भाई मेरे भाइयों बहनों यहाँ पे कष्ट में निकालना है, स्वर्ग में जाके हम लोग एंजॉय करेंगे, तो सब लोग को क्या चाहिए हमें? हाँ? तो सब लोग को मरना है ना मतलब. तो नो वन लुक फॉरवर्ड फॉर लाइफ. कोई जीने के लिए नहीं जिएगा. क्या करेगा? बोलेगा स्वर्ग जाने का है भाई, मेरे को मरने का है. तो जल्दी मरने के लिए you are going to live to die, not live to live. But the truth is that God is saying that Jesus did not come in heaven to die for you. Jesus came on earth so that you may have abundant life, not in heaven, starting from earth. So that you and I start living a victorious life starting from earth. इधर से जाने के बाद नहीं, आज से यहाँ से you are going to live a victorious life. When Jesus said, I took the stripes, you were healed. कहाँ पे healed? स्वर्ग में जाके हम लोग सब आरोग्य रहेंगे. क्या फायदा है स्वर्ग में जाके आरोग्य रहेंगे? You need health here. People are sick here. People need solution here. You remember last time a person came who had a problem with his heart or hand. You know, he couldn't. God healed him instantaneously. इधर का इधर he just God healed him. Lord, God is real. Our God is not a God who is just in mere words, but He is a God who is in power and reality. Amen. आज हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं रेस्ट, और मुझे गारंटी है, I am very sure because this is what the Lord said. You know, when I say this is what the Lord says, मतलब I really mean it. Okay? ऐसे बोलने के लिए नहीं प्रभु ने कहा. No, when I use the word God said, I really mean when I say. Okay? Now let's open our Bibles to Genesis chapter 2 verse 1. अभी बाइबल कौन से बुक से शुरू होता है? Genesis. Okay, so we are going to go on a journey. आप लोग तैयार हैं जर्नी के लिए? Yes. हाथ उठाओ फिर मैं बोलेगा तैयार. हाथ. Yes, very good. Okay, we are going ahead with the journey. Okay, let's go ahead. Come with me to the book of Genesis. Now I want please give the mic to Yash. Yash, please keep on speaking in Hindi. Okay, you can translate it in Hindi. Okay, come to Genesis chapter 2 verse 1. Yeah, please read verse 1 and 2. जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया. 1, 2, 3. Yeah. और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया. और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया. Wonderful. विश्राम लिया. इसका मतलब क्या है? He rested, right? God rested. This is when you see the book of Genesis. You'll say God created, God made this, God made that, God made light, God made this, God made that, God made animals, God made this, and He said. उसके बाद क्या बोलता है Lord create करने के बाद? अच्छा है ना? He created this, He said it is good. He created that, He said good, right? He did everything, said good. Seventh day, Bible says. Which day He rested?
Why did he rest on the seventh day? Why did he rest on the seventh day? He could have rested on the first day also, no? Why did he rest on the seventh day? He finished everything. सब खत्म करने के बाद, listen to this carefully, सब खत्म होने के बाद, it is finished होने के बाद, he rested on the seventh day. It is finished होने के बाद, he rested on the seventh day. When was man created? Which day was man created? Man was created on the sixth day. When did God rest? On the seventh day. Now just see, when man was created, when Adam, Hawa, उन लोग का, when God created them, उन लोग के लिए कौन सा डे था? Sixth day था उनके लिए? ठीक से सोच के बोलो. हाँ? Yes. For Adam and Eve, it was the first day. So God rested on the seventh day, so that Adam and Eve can start resting from the first day. Listen to this carefully. God finished everything. He said, "It is finished." कहाँ पे? क्रूस पर भी. He said, "It is finished." तो अपना जीवन, जैसे हम लोग हर बार बोलते हैं, मैं हर बार बोलना चाहता हूँ और मैं याद दिलाना चाहता हूँ किंगडम कल्चर चर्च को हर बार that what is the vision, because you people are going to see this culture being spreading from this place हिंजेवाड़ी से पूरे पुणे में, a culture which is a kingdom culture. What culture? This is a culture developed after the finished work of Jesus Christ. Why? Because seventh day God rested. When God said it is finished, that was the first day for man to start living. मतलब खत्म होने के बाद that was the first day for man. It is finished के बाद उसने शुरू किया, क्योंकि जब उसका God brought him on the sixth day. By that time he had finished everything that was required for him to live a blessed life. अब देखते हैं आदम के लिए कुछ कम था क्या? When he was created, God ने बोला अरे तेरे पास खाने के लिए नहीं है, रुक तेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाता. ऐसा था क्या कुछ? When God created Adam and Eve, did God think, oh, I made Adam and Eve, but I forgot to make food for him? मैं खाना बनाने भूल गया, इसको तो बना दिया, खाना बनाना भूल गया. अरे अब ये नहाएगा कैसे? पानी बनाना भूल गया. अरे ये देखेगा कैसे? मैं लाइट बनाना भूल गया. हेलो, ऐसा किया प्रभु ने? No. What he did? He created everything. 1, 2, 3, 4, सब बनाने के बाद, when he finished, then sixth day बोला आदमी को बनाया, seventh day he rested, letting him know that man, before you require anything in your life, I have provided it for you. Man could start resting only and only because he knew that he has finished it for him. Now this is the beginning. अभी तक हम लोग ने शुरू भी नहीं किया. This is just the beginning. I'm just showing you a picture कि हम लोग कहाँ से जा रहे हैं. Now listen to this. This is a topic which we are studying on rest. यानी हर बार ना कुछ टेंशन है, कुछ वरी आया, क्या अपन आराम से बैठ सकते हैं? हेलो, क्वेश्चन बताओ, मुझे उत्तर दो. हेलो, मैं चाहता हूँ किंगडम कल्चर चर्च में अभी जो भी, अभी आप लोग भी आए, नए आए, राइट? यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चर्च, राइट? I don't want you to just sit here. You need to speak. You need to learn this. Put it to practice, because this is not a religious organization. हेलो, मैं खुद ही रिलीजन में विश्वास नहीं करता. I believe in a relationship. Okay, and I want even each one of you to start developing an intimate relationship with your Creator, your Father. That is the best relationship which you and I can start having. Right? Okay, so I would like to ask you a question. Whenever there is challenge, कुछ challenge आ गया, अचानक कुछ प्रॉब्लम आया, क्या अपन रेस्ट में बैठते हैं? सोच के बताओ मेरे को, जोर से बोलो. कुछ प्रॉब्लम आया अचानक, रेस्ट में बैठ सकते हैं? क्यों नहीं बैठ सकते? उत्तर दो मेरे को. मार्टिन स्माइल कर रहा है. मार्टिन उत्तर दे मेरे को. क्यों, जब टेंशन वरी हो गई तो रेस्ट में क्यों नहीं बैठ सकते? हाँ? अरे वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. मार्टिन पूरा प्रॉपर किंगडम कल्चर का बन गया है. हाँ, वेरी नाइस. हाँ, ओके. अगर प्रॉब्लम है तो क्या रेस्ट में बताओ? क्यों रेस्ट में नहीं बैठ सकते? बताओ, जल्दी बताओ. टेल मी, उत्तर बताओ. ऐसा कुछ प्रॉब्लम, अरे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, ठीक, ऐसा होता गया अपन. अरे हो गया, अरे तुम गया, नहीं ऐसा हो गया, अरे मैं ऐसा हो गया, अरे भाव हुए तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. रेस्ट में क्यों नहीं बैठ सकते? टेल मी, गिव मी एन आंसर. बताओ भाइयों, बहनों.
बताओ रेस्ट में क्यों नहीं बैठ सकते? थिंक एंड टेल। रिजॉल्व होने तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? वही तो मेरा प्रश्न है। वो तो मैं वही जानता हूँ कि नहीं उधर ही क्यों? यस, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? यस सर, वेरी नाइस। क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? क्या प्रॉब्लम है? इसको उत्तर मालूम नहीं है, क्या बोलना नहीं चाहता, क्या है? ओके, चलो हम लोग बाइबल ओपन है, बाइबल टू जेनेसिस चैप्टर 1। अभी हम लोग स्लोली एंड स्टेडली जाते हैं, ठीक है? ओके, यस प्लीज रीड फ्रॉम वर्स 24 टू 28। ठीक है, सुनो, ठीक से सुनो। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता से बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्रों की मछलियों तथा आकाश में पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वालों सब जंतुओं पर अधिकार रखो। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। जब आपने जेनेसिस चैप्टर 2 में देखा, यू नो व्हेन यू स्टार्टेड विद दिस दैट लॉर्ड क्रिएटेड एवरीथिंग ऑन द सेवेंथ डे ही रेस्टेड। अभी हम लोग वापस से वर्स नंबर 1 में जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 में जा रहे हैं, ताकि चेक करने के लिए कि लॉर्ड ने जो जो चीज बनाया उसके बाद बोला गुड, है गुड 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 गुड। आप वर्स नंबर 31 पढ़ो। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, और तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। हेलो, बोर हुआ नहीं है, हाँ? लॉर्ड देखने का बोर नहीं हुआ, वो भोर हुआ बोलता है, भोर, ठीक है? ओके, बोर नहीं है, प्रभु कभी बोर नहीं होता है, वो भोर लिखा है, ठीक है? तो कंफ्यूजन हो गया, बोर हो गया प्रभु नहीं, प्रभु कभी बोर नहीं होता। ओके, नाउ लिसन टू दिस। अगर आप देखेंगे वर्स नंबर 24, 25, 26, 7, गॉड ने सब चीज बनाया, सेड इट इज गुड, इट इज गुड। जब प्रभु ने आदमी को बनाया, लिसन टू दिस केयरफुली, जब आदमी को बनाया और आदमी के लिए सब कुछ बनाया आदमी के लिए, तो बाइबल वर्ड यूज करता है अति उत्तम। You see this? That's why Bible says in the New Testament, God delights in your prosperity. That's where it comes from. God delights in your prosperity. Why God delights? कि आपके साथ अच्छा हेल्थ रहे, आपके साथ सब अच्छा रहे. God delights. क्यों God delights? Because when God created everything for man, when man is depending on God for everything, God delights. When our source is God for your soul, for your health, for your wealth, for your family, when your source is God, God knows that He is dependent on me, then I can depend on Him. I understand this. When God knows this person is dependent on me, then I can depend on Him. If this person is dependent on something else, if this person is dependent on something else, how can I depend on Him? If this person is dependent that only doctors, only medical can give me health, and not depend that God can give me health. If only money can give me riches, not God can be my source, how can God depend on Him? Hello, are you understand this? When God, देखो इसके जब प्रभु ने सब चीज बनाया, सातवें दिन प्रभु ने, God said He rested. Bible says He rested, and never did He say very good. When He saw man, when He created man, and when He created everything for man, He said very good. Why did He say very good? Is because He knew that He is the source of man, and man also knew that God is my source, and man lived happily. कभी भी आदम को कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ। कभी देखते हैं बाइबल में कुछ कम ज्यादा हुआ तो वो उतुर पुतुर होने लगा। तभी उतुर पुतुर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अभी इसके लिए अभी हम लोग वहां पे पहुंचे हैं। आपको प्रश्न पूछा था याद है कि अगर आप ऑल ऑफ सडन कुछ चैलेंज आ गया तो आप ऐसा हड़बड़ाते क्यों, क्या है, रेस्ट में क्यों नहीं रह सकते? उसका उत्तर अभी यहां से, क्योंकि हर रेवलेशन शुरू होता है जेनेसिस से। कुछ भी रेवलेशन रहेगा ना, लॉर्ड किधर ना किधर कुछ ना कुछ जेनेसिस में डालता ही है।
every revelation has something in the book of Genesis. Now listen to this. Adam had to not panic. Why Adam had to not panic? Because everything was provided for him and he knew who's his provider. That's why उसको पैनिक करने की जरूरत नहीं थी उसको. अगर सपोज वो उधर गया, नदी में पानी नहीं है, सपोज नदी में पानी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नदी में पानी नहीं, लेकिन सपोज नदी में पानी नहीं है, वो क्या करता? किसको कॉल लगाता? अरे पानी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, पानी नहीं है, क्या करता? और पूछ रहा हूं मैं आपको, पानी नहीं रहता नदी में, क्या करता? What would he do if water is not in the rivers for him to drink? क्या करता? वो गॉड को बोलता. क्यों गॉड को बोलता? क्योंकि गॉड ही उसका सोर्स था. गॉड only was the one who had provided everything for him. So his source was not anything else. His source was God. That's why he could rest. See this all. Adam could rest because God was his source. बोलो आदम, हिंदी में बोलो, माइक में बोलो, हिंदी में सब लोग आपको आपके साथ दिए गए. बोले Adam could rest. आदम आराम कर सके. हाँ, Adam could rest because God was his source. कि गॉड ही उसके सोर्स थे. बोलो सब लोग उसके पीछे. आदम आराम कर सके क्योंकि गॉड ही उसके सोर्स थे. Yeah, see this. Adam could rest because God was his source. कुछ भी कम हुआ, अरे फल नहीं है पेड़ पे, किसको कॉल करेगा? मार्टिन. किसको कॉल करेंगे? किसको बोलेगा? प्रभु को बोलेगा. Because his source was God. That's why he could rest. Now where did unrest start from? Unrest किधर से शुरू हुआ? Unrest started, or you can say, you know, this kind of feeling जो है ना, अरे बाप रे मैटर हो गया, अभी क्या करने का, वो जो मैटर किधर से शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उस जड़ में जाना जरूरी है क्या नहीं? जड़ को पकड़ेंगे तो we can get the right solution, right? हम उसका जड़ देखो. The main problem started after the curse. कहाँ से शुरू हुआ? कर्स से शुरू हुआ. Okay, can someone open Genesis 3? We are going on a journey. Please listen to this carefully. It is going to be very, very powerful. It's going to be a great, great blessing. Okay, Genesis 3, 17 and 18. You can read in English also once. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. एक बार हिंदी में पढ़ना. और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी और तूने उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि पर तेरे कारण शापित है. तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा. Amen. Thank you so much. You know, ये अगर वर्स अगर आप पढ़ेंगे, after toil, Bible says, you know, you read it there, he's saying, in toil you shall eat. हेलो, आप देखिए उसकी says, in toil you shall eat. अब इसके पहले in toil he shall not eat. In abundance he was eating. In provision he was eating. Man was eating, Adam and Eve were eating, not in toil. Before curse they were eating in abundance because God provided. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5 सब provide करेगा. Day 6 को आदम हवा को लाया ताकि he can have everything उसके पहले ही लौट के दिया है. देखो, when you read in Ephesians chapter 1 verse 3, where Bible says God has blessed you with every spiritual blessing. पढ़ते हैं हम Ephesians. Can you read Ephesians 1 verse 3 quickly? Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians 1:3. We are learning something. We are going somewhere. Please listen to this carefully. Yes, Ephesians 1:3. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है. हाँ, see, God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenlies through Christ Jesus. He says हर चीज. अभी हम लोग का हर बार ये प्रश्न रहता है, किधर है blessing? Brother, blessing किधर है? God has blessed us, तो किधर है? You see this? Listen to this carefully now. किधर है? Bible says God has blessed you. अरे किधर है? God has blessed you. अरे किधर है? This is a turmoil, a challenge which everyone is facing.
a challenge. अभी ये सोचो, when God created everything for Adam, Adam was completely resting in God, believing in God as his only source. His comfort, his rest was in God. His provision was in God. His health was in God. The fruits, जो भी उसको खाना था, it was in God. His source was God. That's why he could rest in God. हेलो, समझ रहे हो? Now when toil came, when curse came, when curse entered, Bible says over here, in toil you shall eat. तो क्या हुआ? कष्ट में खाना पड़ा. आपने सुना है? अरे खून पसीने की मेहनत है. सुना है डायलॉग? ये डायलॉग सुना है? ये खून पसीने की मेहनत है. भाई ये इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है. जब कोई डायलॉग बोलता है ना, अरे भाई ये खून पसीने, बोलेगा ये कर्ज बोल रहा है तुम. क्या बोलेगा? तुम कर्ज बोल रहा है क्या? कोई बोलेगा अरे यार तुम क्या लगता है ऐसा है क्या? ये पूरा मेरे खून पसीने की मेहनत है. उसका मतलब क्या है? भाई तू कर्ज बात करता है. तू बोलेगा अरे मेरा खून पसीने की मेहनत है, मतलब तू कर्ज में ही निकाला सब. ये सब तू जो बता रहा है ये कर्ज में है सब. खून पसीने की मेहनत. बाइबल सेज इन टॉयल यू शैल ईट. मतलब ये जो खून पसीने की बात कर रहे हैं, दिस इज इन टॉयल. दिस इज नॉट अ ब्लेसिंग. दिस इज अ टॉयल. दिस इज अ कर्स. ये कुछ अच्छी चीज नहीं है. कुछ यू कैन, इट्स नॉट अबाउट समथिंग और बोस्टिंग. अरे ये सब मैंने बनाया, मेरा खून पसीने की मेहनत. अरे भाई क्या मतलब कष्ट, मतलब खून पसीने मतलब जैसे कि कर्स का है इन शॉर्ट. You understand this? This is curse. He was eating from abundance. Because of curse, he started eating from toil. Toil से खाने लगा. पहले abundance से खाता था. Provision कौन था? God. अभी provision कौन है उसका? अभी वो खुद हो गया उसका provision. कैसा? क्योंकि उसको toil, जब तक sweat और वो नहीं निकलता, तब तक उसको कुछ नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि toil you shall eat. हेलो, समझ रहे हैं? It was not in rest he was eating. He was eating in toil. और मैं आपको बताता हूँ 95% लोग, believer बोलो, unbeliever बोलो, जो भी बोलो, even today, in toil we want to eat. In toil we want to take. In toil and we tell अरे देख toil से किया है. So we are boasting on curse. हेलो, बाजू वाले को बोल, अरे कर्ज पे बोस्ट मत कर. बाजू वाले कर्ज पे बोस्ट मत कर. कर्ज पे कोई बोस्ट करता है क्या? अरे तो मेरे मेहनत पसीने की कर्ज है वो. हेलो भाई, अंडरस्टैंड? इट्स अ कर्स. बाइबल सेज वेरी क्लियरली, इन कर्स, इन टॉयल यू शैल ईट. एंड ही स्टार्टेड ईटिंग इन टॉयल. मतलब वो मेहनत करते. इसका मतलब क्या है ब्रदर? मेहनत नहीं करना है क्या? रुको, अपन जा रहे हैं, अपन सीख रहे कुछ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं करने का क्या? ऐसे टपकेगा क्या? ऐसा ही टपकेगा. भाई पता था आपको, सब देखेंगे आप, हम लोग सब सीखेंगे. यू ऑल विल लिसन एंड लर्न बिकॉज़ इट्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. अगर मैं बाइबल के बाहर बोलूंगा, आओ और मेरा कॉलर पकड़ो, बोलो भाई ऐसा गलत क्यों बता रहे हो? बट आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम द वर्ड एंड आई वांट यू ऑल, you know, part of kingdom culture, also the ones who are watching us live, when I'm speaking the word, open your own Bibles and read it for yourself. आपको याद है 40 साल प्रभु ने ऊपर से टपका के खिलाया लोग को. बाय द वे, ओल्ड टेस्टमेंट की बात है, न्यू टेस्टमेंट में अभी तक गए नहीं, वैसे ओल्ड टेस्टमेंट की बता रहा हूं. 40 साल ऊपर से टपकता था. कोई बोलता ना क्या ऊपर से टपकेगा? हाँ, ऊपर से टपका 40 साल. सिर्फ वेज टपका ऊपर से नहीं, नॉन वेज भी टपका ऊपर से. हेलो, सिर्फ वेज टपका के ऊपर से. हेलो, आपको मालूम है ना ये स्टोरी ऑफ द इन द बाइबल, 40 साल इन द विल्डरनेस, क्या क्या टपका ऊपर से? मन्ना खाए. और क्या टपका? क्वेल्स. तो लोग जब रोने लगे कि हमको सिर्फ वेज मिल रहा है, हम लोग तो अच्छा नॉन वेज खाते थे, अच्छा मटन चिकन खाते थे. कहाँ पे? इजिप्ट में. तुमने इधर क्या मेरे को रोटी और दाल खिलाने लाया? तो लॉर्ड ने बोला तुमको चिकन भी खिलाता, तुमको क्वेल भी खिलाता, तुमको नॉन वेज. सो देयर वाज लिटरली दे हैड क्वेल, दे हैड नॉन वेज, दे वर ईटिंग. दिस इज व्हाट टपका है. तो ऊपर से हाथ टपका है आपने. This is God taught them 40 years कि I am your provider. लेकिन लोग को समझा कि God is provider? नहीं समझा. नहीं, उन लोग को लगता था अरे नहीं, गॉड ने टपका बराबर है, लेकिन मेरे को जाके उठाना पड़ रहा ना. अरे उठा तो करना ही पड़ेगा ना. अभी ऊपर से गॉड टपका रहा, लेकिन उठाना मैं मेरे मुंह में भी गॉड डालेगा, चबाएगा भी गॉड. क्या कितना करेगा गॉड?
लाके दे देगा तुमको. You need to take it. That's what Bible told in the beginning. You have dominion. Have dominion. You take control. Tend and keep it. It's yours. This is even before curse. He told man. Read it in Genesis 1:28. See what he told. Genesis chapter 1 verse 28. ये before, even before the fall, Lord ने बोला आदम को कि क्या करना है तुझे? What you need to do? See, read it carefully. पढ़ो जोर से कोई तो 128. क्या करना है आदम को? ये कर्ज के पहले का बात है. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्रों की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वालों सब जंतुओं पर अधिकार रखो. See, this is what God did. You remember हम लोग ने लास्ट टाइम 5 चीज सीखा था. कौन बोलेगा जोर से? हम लोग चर्च में लास्ट संडे 5 चीज सीखे थे. क्या? Be fruitful, multiply, replenish, fill the earth, subdue and have dominion. है ना? ये चीज सीखे हम लोग ने. This is the thing which God told even before sin came, even before curse came. He said, this is what you are going to do. Subdue, have dominion. राज करो यार. मैंने बनाया सब राज करो. अभी भी प्रभु यही बोल रहा है, सब मैंने बनाया राज करो. लेकिन अपन बोलेंगे नहीं, हम लोग मेहनत से ही खाएगा, मैं टॉयल से ही खाएगा, मैं टॉयल से ही खाएगा. प्रभु बोलता है राज कर यार, राज कर मैं दिया है. नहीं, मैं जब तक मेरा सिर नहीं फोड़ता मैं नहीं खाएगा. ये किसको कौन बोलता है? आदम बोलता है. ये कौन बोला है? After the curse, because God said, in curse you shall toil. So this is what started happening to mankind. In toil only they were happy. अभी suppose आप लोग इधर ये जगह पे हर रोज 7 बजे आ रहे हैं, 10 साल, ठीक है, 7 बजे आ रहे हैं और आप लोग ये फ्लावर इधर लगा रहे 7 बजे. डेली आप आते और ये फ्लावर लगाते कितने बजे? 7 बजे, ठीक है, डेली 10 साल कर रहे हैं. अभी 11वें साल में अगर मैं आपको बोलूंगा अरे इस फ्लावर लगाने का कुछ मतलब नहीं, मतलब बोलेगा अरे मतलब ऑफ, तो आप क्या करेंगे? मैं 10 साल से लगा रहा है, मैं लगाएगा. बोले तुमको बहुत दूर से आ रहे, तुम मुंबई से आ रहे इधर लगाने, 10 साल आए तुम, बोलेंगे नहीं मैं आएगा, जितना कष्ट करेगा मैं आएगा. बोलेगा जरूरत नहीं मैं आएगा. क्यों? अभी आदत हो गया. अभी क्या हो गया? आदत हो गया टॉयल का. अभी ऐसा लगता है टॉयल के बिना कुछ जीवन ही नहीं है. टॉयल के बिना कुछ जीवन. दैट मींस यू थिंक दैट विदाउट टॉयल देयर इज नो लाइफ. दैट मींस यू हैव टू ऐसा खोड़ के फिर ही अपन खा सकते, तो नहीं खा सकते. दैट इज बिकम अ हैबिट. दैट बिकेम हैबिट टू मैनकाइंड इवन टिल डेट. It's become a habit to mankind that without toil I'm not going to eat. But who is your source? Are you your own source or God is your source? For your health, for your wealth, for your family life, for your blessing, who is your source? When Adam was toiling, who became his source? He himself became his source. Even today, आजकल अपन क्या बोलते हैं? अरे मैं नहीं कमाएगा तो तू कैसा खाएगा? अरे वो अच्छे से खाएगा, उसका प्रभु है, उसका प्रभु. ये बोलने का. मैं मेहनत नहीं करेगा तू क्या खाएगा? अरे खाएगा. क्यों नहीं खाएगा? प्रभु गॉड इज अ प्रोवाइडर. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फ्रॉम वेयर डज रेस्ट कम फ्रॉम? वी आर टचिंग, वी आर जस्ट स्टार्टिंग. अपन जिस ना सरफेस को थोड़ा स्क्रैच कर रहे हैं. बोल रहा आपको ये रेस्ट का टॉपिक. वी आर गोइंग टू गो लॉन्ग. मुझे लगता है 2-3 महीना अपन सिर्फ रेस्ट पे वी आर गोइंग टू स्पीक. हम लोग रेस्ट पे सीखेंगे. ओके, आर यू रेडी? Yeah, we are journeying and I want all of you to be learning this and putting into practice. Okay, so this toil and eat came from the curse. See, you saw that verse, in toil you shall eat. So he started eating in toil. मतलब मेहनत नहीं करके मैं नहीं खा सकता, मैं खा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने मेहनत ही नहीं की, मैं खा ही नहीं सकता उसको. अगर सपोज प्रभु लाके दे रहा है लेकिन मैंने मेहनत ही नहीं की, मैं नहीं खा सकता. क्यों हो गया? टॉयल का आदत हो गया. That became a habit of toil. Now what ये जो टॉयल का जो है ना, this happened, started from happening from Adam, and Bible says that God always wanted, you see everywhere you see in the Bible, God always wanted man to have rest. God always wanted आदमी को रेस्ट हो. I am your provider, you take rest, I am your provider, मैं तेरा सोर्स. आदम बोला तुम सोर्स भी जो भी है भाई बाद में, मेरे को मेरा मेहनत करने दो. जैसे अपन इधर संडे को पढ़ते सीखते, मंडे बोलते वो सब ठीक है, अपने को तो अपना तो तोड़ेगा तो ही तो मेरे को मिलेगा कुछ. सीरियस मतलब क्या हो रहा है? वी आर जस्ट सेइंग नहीं वो सब ठीक है, मैसेज बाइबल गॉड और सब है, लेकिन मैं जब तक नहीं करेगा तो मेरे को कैसे मिलेगा ब्रदर, मेरे को कैसे मिलेगा सिस्टर? मतलब क्या हो गया? व्हाट ऑल वी हर्ड वी हैव नॉट बिलीव्ड. इफ यू हैव नॉट बिलीव्ड वी कैन नॉट लिव. हेलो, समझ आए बात? आर यू अंडरस्टैंड दिस? यस, ओके.
So every time God wanted man to have rest, he was restless. It all started from curse. Started from curse. I don't understand this. Curse. इसके लिए man couldn't be at rest. इसके लिए जब मैंने आपको प्रश्न पूछा ना कि अगर अचानक ऐसा आया तो अपन रेस्ट में क्यों नहीं रह सकते? क्यों? उसका आंसर क्या मालूम क्या? क्योंकि अपने को लगता है कि अपने को सॉल्व करने का है। हेलो, अपने को लगता है आज कुछ मैटर आ गया बड़ा, अपने को लगता है अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा मैटर होएगा। अगर मैं सॉल्व नहीं करेगा इसको, बहुत बड़ा मैटर होएगा। मतलब इसका मतलब क्या है? अपन खुद के सोर्स बन के जी रहे हैं। वी आर बिकमिंग आवर ओन सोर्स कि मैं ही करेगा तो ही मेरे को मिलेगा। ये पेट का सवाल है, ऐसे बोलते हैं ना, ये पापी पेट का। पहले तो पेट बोलते, उसके बाद पापी पेट बोलते। जो यीशु ने से क्रॉस पर सबको राइचियस बनाया है, ही इज ऑलरेडी मेड अस राइचियस, ही इज ऑलरेडी मेड अस होली, लेकिन अपन पेट भी नहीं होते। ये पापी पेट का सवाल। देखो डायलॉग देखो लोगों का, यू नो, पापी पेट का सवाल। गॉड ने पहले पापी नहीं, नन ऑफ यू आर पापी हियर। हेलो, इधर कोई पापी हाथ उठाओ। हाउ मेनी ऑफ यू आर सिनर्स? प्लीज पिक अप योर हैंड, लिफ्ट अप योर हैंड्स। अरे किंगडम कल्चर में भी पापी नहीं? हेलो, प्लीज लिफ्ट अप योर हैंड्स, ऑल सिनर्स। सिनर्स प्लीज पिक अप योर हैंड, सिनर्स। बाप रे, अरे तुमने कल गाली दिया, मैं सुना। सिनर्स प्लीज लिफ्ट अप योर हैंड। कोई नहीं उठा रहा यार किंगडम कल्चर में। अभी जो लाइव सुन रहे हैं मालूम नहीं कितने लोग उठा रहे हैं, मालूम नहीं, बट इधर तो कोई नहीं उठा रहा। Why you not lifting your hands up? Because you are no longer a sinner. You saw last time when I told you this, when John the Baptist looked at Jesus. Beautiful verse, okay? John the Baptist ने यीशु मसीह को देखा, and what he said? क्या बोलता John the Baptist when he looked at Jesus? Listen to this carefully. When John the Baptist was walking, when he looked at Jesus, what did he say? Yeah? क्या बोला? Yes, wonderful. क्या बोला? Behold, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. किसके बारे में बात कर रहा था जॉन द बैप्टिस्ट? जोर से किसके बारे में? जॉन द बैप्टिस्ट किसके बारे में बात कर रहा था? जीसस। क्या ये वर्स कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? ये वर्स कंप्लीट हुआ। He says Lamb of God, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. किसके बारे में बोल रहा था? जीसस। तो ये क्या बाइबल में वर्स कंप्लीट हुआ या नहीं कंप्लीट हुआ? कंप्लीट हुआ। मतलब हैज जीसस टेकन अवे या नहीं लिया? वो फिर आएगा तो हम लोग एंजॉय करेंगे अभी पूरा कष्ट में। ऐसा है क्या? बाइबल सेज Lamb of God who takes away the sin of the world. When he takes away, मतलब it is taken away. Now the sin is not on you, it is taken away. So if it is taken away, तो अभी क्या बचा है फिर? Righteousness. क्या बचा है? बोलो I am the righteousness of God. बोलो जोर से बोलो, इसे चौड़ा के कॉन्फिडेंस में। इसमें डरने की बात नहीं है। मैं सही बोलूं क्या? मैं तो हर बार इधर सुनो, मैं डायलॉग बोलता हूं, सुनो अच्छे सुनो। इधर आओ, मार्टिन के कार इधर आओ। अब सबको यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक से सुनो, दो लोग हैं। हाँ तो मैं भी आता हूँ। हम लोग दो लोग हैं, ठीक है? हम लोग दो लोग। अभी ये है प्रीचर और मैं भी है प्रीचर। कौन है? ये प्रीचर और मैं प्रीचर। अब मैं आता हूँ तुम्हारे पास, इनके पास नहीं, मैं नॉर्मल बोलता हूँ। तुम लोग क्राउड है, ठीक है? मैं प्रीचर, ये भी प्रीचर है, तुम लोग क्राउड है। मैं बोलता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बहुत सिनर हूँ और आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगा, मैं भी पापी हूँ, आपके लिए प्रार्थना करूँगा। अब ये क्या बोलता है मालूम क्या? ये बोलता है आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। आई एम द राइचियसनेस ऑफ, ऐसे कैसा बोलेगा? प्रीचर राइचियसनेस कॉन्फिडेंस में पकड़, हाँ इसमें हाथ पॉकेट में डाल दूंगा। हाँ बोल, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। अब ये क्या बोला है? आई एम द राइचियस ऑफ गॉड। अभी लोग क्या बोलेंगे? ये कितना प्राउड है यार, ये कैसा प्राउड। और ये देखो क्या बोलेंगे? कितना अच्छा आदमी है, कितना नम्र आदमी है। ऐसे बोलते ना लोग, थैंक यू सो मच, ऐसे बोलते ना, अरे कितना नम्र है, कितना अच्छे से बोल रहा है कि ना आई एम हम्बल, तेरे साथ प्रार्थना करूं क्या मैं, है ना, मैं भी पापी, तू भी पापी, दोनों पापी, दोनों नरक में जाते हैं अपन। इसी बात के तो लोग को भी अच्छा लगता है, ये भी हमारे साथ है। जब कोई बोलेगा अरे यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड, इतना घमंड है, प्राइड है, प्रो। You see this is the state, this is what is happening in the minds of people. अभी कॉन्फिडेंस में बोलो, I am the righteousness of God. I am the righteousness. हाँ कॉन्फिडेंस, खड़े रहो, सब खड़े रहो, कॉन्फिडेंस
देखना चाहता हूँ अपना किंगडम कल्चर में। आई वांट यू ऑल टू बी कॉन्फिडेंट। बोलो आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। ऐसे तो ना कभी बोलते ना, अरे बताओ क्या कौन है मैं, ऐसे तो डायलॉग बताओ क्या मैं कौन है, ऐसे तो कॉन्फिडेंस बोलो आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। I am the righteousness of God. So I am the righteousness of God. I am the righteousness of God. Amen. Praise God. Please be seated. See, this is our true identity. This is our true identity. अगर evil one comes and tells, अरे पापी है, अरे झूठा है, Bible says when John the Baptist looked at Jesus, he said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." If He has taken away, तो किधर है पाप? किधर है पाप? He's made us righteous. Now let me tell you, ये righteousness is also very much required for you and me to be at rest. मैं इसके लिए इस पे टच किया. Your righteousness is also important for you to be at rest. You know why? क्यों मालूम है? क्योंकि the evil one puts in your mind, अरे क्या तू ऐसा है, तेरे क्या लगता है प्रभु उत्तर देगा क्या? अरे पहले वो जा ठीक करके आ, अरे पहले ये कर, अरे ये कर, वे कर, पापी है तू, पापी है, पापी है, पापी, you are sinner. You cannot enjoy rest because you are yourself stressed. खुद ही स्ट्रेस है, खुद ही ये प्रेशर है, मैं किधर प्रभु को मांगू? आदम प्रभु को बिंदास मांग सकता था। क्यों फिलिप? आदम को बिंदास क्यों मांग सकता था आदम? Because he knew God is my source. मेरे पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है। मैं दूसरे के सामने किसके साथ गिड़गिड़ाऊं? पहले टाइम उसके साथ कोई भी था भी नहीं, वहां पे कोई आदमी भी नहीं था दूसरा। वो किसके साथ में गिड़गिड़ाऊं? God is my source. My rest comes from God. You remember last time we had read this verse from Isaiah 26 verse 3. याद है किसको? बहुत बार पढ़े अपन लास्ट टाइम। किसको याद है वर्स? बोलेंगे जोर से। हम लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ा। आप बोलो, माइक लेके बोलो एक बार। माइक लेके, हाँ जोर से बोलो। ज्याचे मन तुझ्या ठाईस धाडस में बोलो सिस्टर, राइचियस है तुम लोग। हाँ ज्याचे मन तुझ्या ठाईस स्थिर झाले आहे त्यास तू पूर्ण शांती देतो, कारण त्याचा भाव तुझ्यावर असतो. हाँ, Bible says He keeps us in perfect peace. Who keeps? Bible says God keeps us in perfect peace. अगर कौन है यहाँ पे जिसको शांति में नहीं रहना है? मेरे को टेंशन में जीना है भैया पूरा दिन, ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? मेरे को जिंदगी में टेंशन में जीना है, ऐसा कोई है क्या? ऐसा कौन है? मेरे को शांति में जीना है फुल? कोई दोनों नहीं करने है क्या? कोई है ऐसा मुझे शांति में जीना है पूरा? यस है ना पूरा? Bible says He keeps you in perfect peace. Who keeps? God keeps you in perfect peace. ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। लास्ट टाइम इसको ऑफर, God keeps you in perfect peace because we trust in Him. That's why He keeps you. So righteousness will play a role in your life wherein you know that you are the righteousness of God. So when the evil one tells, अरे ऐसा क्या वैसा नहीं, because Jesus has finished for me on the cross, because He has taken away the sin of the world, and world में मैं भी है, He's taken away, so I am righteous, I am holy, I am blessed. Come 2 minutes, let's not close our eyes right now. Just see yourself as righteous, as holy. Come on, let's just see yourself righteous. I want each one of you to close your eyes, even the ones who are watching us live. Keep your eyes closed, and ones who are sitting here, everyone. Keep your eyes closed. Yes, everyone, keep your eyes closed. Everyone, keep your eyes closed, and believe this truth for yourself. That just as Jesus is, जैसा जीसस है, बाइबल बोलता है, so are you. Just as He is, so are you. So now say to yourself, खुद को बोलो कि मैं I am righteous. खुद को बोलो I am righteous, I am holy, I am perfect, I am blessed, I am victorious. I am blessed, I am righteous, I am holy, I am victorious, I am more than a conqueror. Say this to yourself. Thank you, Father. Yes, अपना आँख खोलो सब लोग। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया, मैं आपको फिर बताता हूँ। ये पॉजिटिव कन्फेशन है ना, आईने में देख के you are a winner, you are a winner, you are blessed, you are blessed. Positive confession and speaking the truth from the word is both different. Okay, both are very different. Speaking the truth is different and पॉजिटिव कन्फेशन इज डिफरेंट। क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ? लास्ट टाइम बताया था आपको, कौन है आपको, कौन बताएगा? क्या डिफरेंस है दोनों में? पॉजिटिव कन्फेशन कुछ बेसिस नहीं है। आज मूड है तो मैं बोलेगा आई एम ऐसा, मैं ऐसा। कल मूड खराब हो गया बोलेगा नहीं मैं ऐसा, मैं वैसा। बट द ट्रुथ विल से ही इज द सेम
yesterday, today and forever, and because of his finished work, you are what you are in Christ Jesus. So you can boldly say that I am the righteousness of God. You can boldly say I am victorious. You can boldly say that I can do all things through Christ who strengthens me. You can boldly say. Why? Because your source is in God and He never changes. वो change नहीं करता. He's fixed. He says it and it's done. Now we are on a journey of rest. This. So even in this rest journey, it's important that we know that we are the righteousness of God. क्यों क्या होता है? You saw every time you get off these kind of thoughts which disturbs you, which takes you away from rest. You know how much of rest was Jesus in? Jesus का rest बहुत next level पे था. हेलो? Jesus का rest जो है ना बहुत next level पे था. कैसे? क्या उदाहरण बता सकते हैं? Jesus जो rest है ना, Jesus का rest एकदम next level पे rest था उनका. और बाइबल से as he saw we in this world. ओके मतलब वैसे जैसे रेस्ट लिया था वैसे अपना भी होना चाहिए यहाँ पे. ओके दैट्स हाउ इट हैज टू बी. और जीसस का बहुत नेक्स्ट लेवल था. किसका उदाहरण? कोई उदाहरण देगा? हाँ क्या हो गया स्टॉर्म में? ओके हाँ तो क्या हो गया? एक बोट था है ना, जीसस बोट में था और बोट के आजू बाजू में स्टॉर्म आया और बहुत बड़ा तूफान आया. ओके और डिसाइपल्स लोग क्या कर रहे थे? डिसाइपल्स लोग सो रहे थे. नहीं डिसाइपल लोग जागे थे, जीसस सो रहा था. तो जब उन लोगों ने जीसस को उठाया, अरे उठो उठो उठो, हम लोग मर रहे पूरा पानी में, बोट में पानी आ गया, ऐसे बोले ना, राइट? ऐसे आवाज में बोले रहेंगे लोग, ऐसे बोलेंगे अरे उठे जीसस, थोड़ा पानी में आया, बोट में थोड़ा पानी आया, हाँ जीसस थोड़ा सा उठ जाओ थोड़ा सा, ऐसा लगता है जैसे बोलेंगे. क्या बोलेंगे लोग? अरे उठो जीसस, बोट में पानी आ गया जीसस. तो जीसस उठा. अरे बाप रे, पानी आने तक रुकेंगे तुम लोग? मेरे को मरने तक रुके देंगे तुम लोग? हाँ इधर तक आया, रुके इधर तक रुके देंगे? पहले ही बोलने का था ना. ऐसा बोला जीसस. व्हाट डिड ही से? व्हाट डिड ही से? यीशु ने क्या किया? बिकॉज़ ही वाज एट रेस्ट. Just see an example. Because he was at rest. Jesus उठा, हड़बड़ी नहीं किया, अरे पानी लाओ, बकेट लाओ, ऐसे नहीं. What he did? उनको बोलते हैं भाई विश्वास कहाँ है? देखो सुनो ठीक से इस चीज. उनको चीज क्या होता? विश्वास कहाँ है? मतलब अगर तुम्हारे पे विश्वास होता, you would be at rest. Serious. तुम्हारे पास विश्वास कहाँ है? Where is your faith? Is where your faith? क्या हो गया? Then he rebuked the storm, and the storm ceased. क्या ये डेंजर सिचुएशन था क्या नहीं? मैं आपको पूछ रहा हूँ, सिचुएशन डेंजर था क्या नहीं? आप कभी गए बोट में कभी गए? कभी पानी घुसा बोट में आपके? हाँ कभी घुस गया बोट में पानी? नहीं घुसा ना. हाँ अगर घुसा तो क्या रहता? अरे बचाओ ऐसा. बोट में पानी घुसा, टेंशन आता ना एकदम सीधा, तो पानी आ रहा है. Listen to this, पानी डेफिनेटली टेंशन आता है. नॉर्मल जो है ना कार्नल रहेगा तो you will always definitely have this thought. But Jesus was at complete rest. जीसस ने उनको क्यों पूछा मालूम है क्या? Where is your faith? उसका जीसस का ये प्रश्न था कि तुम्हारा सोर्स कौन है? किस पे डिपेंड कर रहे हो खुद को बचाने को? कि खुद पे डिपेंड कर रहे हो खुद को बचाने को तुम लोग? Do you understand this? This is what he asked actually. Where is your faith? मतलब where is your source? किस पे विश्वास कर रहे हो तुम लोग? देश किस पे विश्वास कर रहे हो? Are you depending on yourself or are you depending on God? This is what he asked. A clear definition of rest. Isn't it amazing? एक और स्टोरी बताता हूँ. ओल्ड टेस्टमेंट से, थोड़ा ओल्ड में देखेंगे आप. ओल्ड भी बाइबल में है, न्यू भी बाइबल में, ठीक है? Okay, let's come to the book of 2 Kings. Okay, we are on a journey. We are going slowly, but understand this. We are on a journey. Okay, 2 Kings. Come to chapter 6. हेलो, आप लोग कुछ सीख रहे हैं क्या नहीं? Yes? Okay, come to 2 Kings chapter 6. अब थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है. थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है. पढ़ना वर्स चैप्टर 6 में
read from verse number 8 to 14. Come on. और अराम का राजा इजराइल से युद्ध सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। या और अराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे सिताया था, भेजकर अपनी रक्षा की, और उस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर काम है? उसने कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इजराइल में भविष्यद्वक्ता है, वह इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेज कर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। अब 15 पढ़ना। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखा है कि घोड़े और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसने सेवक से उनसे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? Now listen to this carefully. I read in English also. ठीक से सुना। Now the king of Syria was making war against Israel. एक सीरिया का जो किंग था, इजराइल के अगेंस्ट वॉर कर रहा था। पूरा स्टोरी समझो, इसका आइडिया सुनो क्या है। इजराइल का किंग, सीरिया का किंग इजराइल पे वॉर कर रहा है, ओके? And he consulted with his servant saying, my camp will be in such and such place. इधर मेरा जगह रहेगा। And the man of God sent to the king of Israel saying, beware that you do not pass this place, for the Syrians are coming down here. Then the king of Israel sent some of the places of the man of God and told him. Thus he warned him that he was watchful there just once or twice. Therefore the heart of the kings of Syria was greatly troubled by this thing. And he called his servants and said to them, will you not show me which of us is of the king, for the king of Israel? And one of his servants said, none, my lord, O king, but Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the word that you speak in your bedroom. So he said, go and get where he is, that I may send and get him. And it was told him, surely he is in Dothan. Therefore he sent horses and chariots and great army there, and they came by night and surrounded the city. And when the servants of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And the servant said to him, alas my master, what shall we do? ये स्टोरी हमने सुना है बहुत बार, है ना? अभी जस्ट सोचो, अलीशा है, उसका सर्वेंट है, और माउंटेन्स है चारों तरफ, ठीक है? आप लोग गए कोई जगह पे जहाँ पे पूरी तरफ माउंटेन है? कब देखे? पूरा माउंटेन मस्त दिखता है, ठीक है? Now just think these people are their servant. सर्वेंट उठता है, जो देखता है कि पूरी तरह सब लोग ने उनको घेर लिया है, सब लोग ने उनको घेर लिया है। अब मुझे मेरा क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन, ये चैलेंजिंग सिचुएशन है या नहीं? सिचुएशन चैलेंजिंग है या नहीं? मतलब लाइफ की बात है ना, तो मार देंगे ना, पूरा तो कवर है। लिसन टू दिस, लिसन टू वर्स नंबर 16। अलीशा ने क्या बोला देखो। He said, now I want all of you to listen to this carefully. He said, do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. किसने कौन बोला ये? अलीशा। And Elisha prayed and said, Lord, अभी देखो आंखों में जो दिखने वाला चीज है ना, वहां पे सब बहुत लोग घोड़े पे सब लोग एनकैम्प किए थे उनको, और उसका जो सर्वेंट था वो देख रहा है, अरे भाई ये सब लोग है। Just think the same situation when Jesus was in the boat. Same situation, just think. Jesus in the boat. Disciples बोला, अरे हो गया अभी सब मरने वाले, उठो भाई, मरने वाले। Saying that even the servant was scared, सब लोग चारों तरफ से घेर लिया है। एलिशा ने क्या बोला उसको कि रुक, do not fear. See what he says, verse number 16. Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them.
बोलो जो हमारे साथ है ना वो ज्यादा है इन लोग से। अभी सबको तो 1000 लोग रहेंगे, अभी ज्यादा मतलब अपने पास 10,000 है, 15,000 है अपना जो है, लेकिन वो दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था। When God asked the disciples, where is your faith? दिख रहा था क्या प्रभु ऊपर से बचा रहा है हमको पानी से? नहीं दिख रहा था। इनको क्या दिख रहा था? पानी दिख रहा था, डर दिख रहा था। That's why rest is believing in unseen. Rest is depending on God whom you cannot see with your natural eyes. That is when you and I can rest. When you and I trust in God, believe Him as your only source, not an alternative source. Believing as your only source is when you can rest. If you have an alternative source, plan B, plan C, plan D, मैं बोलता हूँ आपको, you will never be able to rest. क्योंकि एक फेल कर दिया, बोले अरे दूसरा कर पाएगा, कोई फेल कर दिया, अरे अब मैं क्या करूँ? That means when your rest is dependent on something else, not God as your source, you can never truly rest. Are you understanding this? You can never truly rest. So what happened? So Elisha told, listen to this carefully. Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man and he saw. प्रभु ने प्रार्थना, उसके एलिशा ने प्रार्थना किया, बोला प्रभु इसका आँख खोल। मतलब उसका मतलब क्या था? एलिशा का आँख ऑलरेडी खुला था। That means Elisha was already seeing. मतलब he already believed that people who are with him are greater than the people who are here. That's why the Bible says the one who is in you is greater than the one who is in the world. That means even when you cannot see, आपको दिखता है क्या? कौन है आप में? कैसा greater है? Greater is he who is in you. See आप बंद करो, बोलो greater is he. बोलो ये बात मेरे पीछे बोलो, बोलो greater is he who is in me than he that is in the world. बोलो आप, greater is he that is in me than he who is in the world. Amen. So now when you say greater is he that is in me than he that is in the world, can you see it? Can you see it? आप बोले मेरे अंदर जो है वो ग्रेटर है दूसरे से, क्या आप दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन आप विश्वास से बोल रहे हो। That is you are विश्वास से बोल रहे हो, because you trust. The same thing you are. एलिशा बोला उनको, अरे यार ये जो दिख रहे हैं आपने इसे ज्यादा है। फिर he prayed for him. God, he said, Lord, open his eyes. And the Lord opened his eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. See this? Everyone, the one who's with you, let me tell you one truth. The one who's with you, who's with me, is greater than the one who's in the world. आपके साथ और मेरे साथ जो है, वो दुनिया में किसके पास इतना ताकत नहीं है जितना the Lord has with us. He's here with us. The angels are with us. You are not alone. Whenever you go, the Lord is with you. The angels are with you. You are always protected. You are never alone. You are never alone. You are never alone. कल में मेरे बच्चों को हम लोग प्रार्थना करते हैं, I, my son, my daughter, we were in the house, we were just, we occasionally do it. हम लोग रूम में आते हैं, रूम बंद करके, we take 2-3 songs, worship करते हैं, and then we read some word, ऐसा करते हैं हम लोग. Yesterday I was telling them that you are not alone, you are not alone. मैं उनको बोला, even in the bathroom, you are not alone. ऐसा मैंने बोला. तो मेरी बेटी हंसने लगी, अरे बाथरूम में भी करे. Yes, that's the truth. See, you are never alone. He is with you. You are never alone. And when you know that you are not alone, and when you know that your source is God, come on, क्या कुछ चीज आपको मिला सकता है? क्या कुछ चीज आपको मिला सकता है? हेलो, समझ रहे हो बात? So what happened here? Let's face this. And when he saw everyone was easy, तो ये young आदमी खुश हुआ कि नहीं? खुश हुआ? देख के कि सब जो इसके साथ है, they are greater, they are more in number than all of these people. Hallelujah. Hallelujah. All that you and I need to do is believe. आपको मुझे देखो, आपको मुझे क्या करना है? What should I do? क्या steps करूँ फिल्म में? क्या करूँ कि God can I win the favor of God? Believe. Just believe in what He has done for you. When word says He is with you, when the word says you are not alone, just believe. क्या difficult है क्या? अगर मैं आपको बोलेगा, अगर आपको आशीर्वाद होना है,
यहाँ पे एक बड़ा माउंटेन है, जाके उधर नंगे पांव उधर चल के आओ, अगर मैं बोलेगा, व्हाट विल डू? इमीडिएटली जाएंगे, सब लोग इमीडिएटली जाएंगे। वाई? हाँ, ऐसा अगर करके आया तो मेरे को ऐसा लग रहा अभी मैं कुछ तो करके आया ना, अभी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। सी दिस इज द फॉलन माइंडसेट ऑफ मैन, वेयर टॉयल में खाना है, दैट इज व्हाट इज हिज, इट्स नॉट रेस्ट, इट्स इन toiling he will eat, that is what a man is living in, not in rest, not in grace, not in freedom, but in toil, के करा तो मेरे को मिलेगा, नहीं तो कैसा मिलेगा, ऊपर से आएगा क्या? I really thank God कि ऊपर से लॉर्ड ने ओल्ड टेस्टमेंट में डाला है। I am really happy कि ओल्ड टेस्टमेंट में ही लॉर्ड ने दिखाया कि ऊपर से भी डाल सकते हो, तुम खा सकते हो, even when grace was not revealed, because Bible says law came through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Even before that मन्ना आया ऊपर से, they were eating freely. God showed them कि I am your source, I can provide. एक बार टेस्ट तो करके, एक बार तुम विश्वास तो करके देखो, एक बार विश्वास तो करके देखो। और are you understanding this? क्या करना है? Believe. आपको एक बताता हूं मैं चीज, हर जगह पे, हर जगह, नॉट ओनली क्रिश्चियंस बिलीवर्स, नहीं, हर जगह पे कुछ तो करना ही पड़ता है। बोलो बाजू को बोलो, कुछ तो करना पड़ता है। अगर ब्लेसिंग चाहिए कुछ तो करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ऐसे बैठे मिलेगा, नहीं, कुछ तो करना पड़ता है। सब जगह एवरीवन नोज, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ क्रिश्चियन बिलीवर में नहीं, सब जगह मालूम कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर तुमको कुछ आशीर्वाद चाहिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना कुछ करे कुछ नहीं होगा। सबको मालूम है बात। एक ओपन एक्ट्स चैप्टर 16, एक चीज बताता हूँ बिफोर वी गो अहेड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड एंड प्रेयर। एक्ट्स 16, जल्दी आ जाओ, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16। Please read from verse 25 and read till verse 30, 25 to 30, जोर से पढ़ा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब एक बंधन में खुल पड़े। और दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए और उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने उसे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अभी सुनो, क्या पूछा प्रश्न, क्या पूछा उसने? हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अभी स्टोरी, सबको स्टोरी मालूम है, ठीक है, हम फिर से स्टोरी देखेंगे। ये स्टोरी ऐसा है, पॉल और सिलास को जेल में डाल दिया। किसको? पॉल सिलास। पॉल कौन है? प्रॉफिट, अपोस्टल है, वो इज प्रीचिंग एवरीवेयर। उसको पकड़ के, सिलास को पकड़ के, सिलास को नहीं, ही इज आल्सो विद पॉल, दे आर प्रीचिंग एवरीवेयर, उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया, दोनों जेल में, ठीक है। और रात को ये लोग दोनों जेल में कुड़कुड़ाने लगे कि क्या प्रभु आपका ही काम कर रहा है, आपका ही काम कर रहा है, आपने मुझे जेल में डाल दिया, कैसा प्रभु है, क्या प्रभु है तुम? ऐसा हो क्या? पॉल और सिलास को जेल में डाला तो लोग कुड़कुड़ाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्या प्रभु तुम प्रभु है क्या, क्या करते, व्हाट आर यू रियल गॉड, व्हाई डिड यू पुट अस इन जेल, इफ यू वुड बी गॉड यू वुड रिमूव अस फ्रॉम जेल, व्हाट गॉड यू आर, ऐसा कुछ किया उन्होंने? नो, व्हाट वर दे डूइंग? बाइबल सेज they were praying and singing hymns jail mein. What they were doing? Praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. तो लोग, दो लोग जेल में Hallelujah, thank you Jesus, praise कर रहे, they are singing hymns in the jail. बाकी prisoner लोग उनको सुन रहे हैं कि क्या कर रहे हो, okay? Listen to this. Suddenly there was an earthquake, and the foundation of the prisons was shaken, and immediately all doors were opened. And everyone's chains was loosed. क्या हुआ? अचानक earthquake हो गया, earthquake हुआ, सबका chains टूट गया, सब लोग दरवाजे खुल गए, सब लोग फ्री हो गए, ठीक है, सब लोग फ्री हो गए। And the keeper of the prisoner awaking from the sleep
and seeing the prison doors open, supposing that the prisoners had fled. अब क्या हो गया? जो उधर का रखवाला था, किसका? प्रिजन का। क्या हो गया? अचानक ऑल डोर्स वर ओपन, सबका चेन टूट गया, आवाज आया जोर से, ये क्या हो गया? डर गया। कौन डर गया? हाँ, कौन डरा? जेलर, जो वहां पे जेलर, वो डर गया। वो क्यों डर गया? वो उसको था कि मैंने इनको जेल में डाला, अब लोग सब लोग भाग गए तो मेरे जो सीनियर लोग रहेंगे मेरे को मार देंगे, डेफिनेटली मारेंगे मेरे को। तो क्या किया देखो, एंड द कीपर ऑफ द प्रिजन अवेकिंग फ्रॉम स्लीप एंड सीइंग द प्रिजन डोर ओपन, सपोजिंग दैट द प्रिजनर हैड फ्लेड, ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड वाज अबाउट टू किल हिम। क्या किया उसने? ही टुक ऑफ हिज स्वॉर्ड। वो स्वॉर्ड क्यों रखा था पहले तो उसने खुद के पास? जेलर ने स्वॉर्ड क्यों रखा था? क्योंकि अगर किसने कुछ उल्टा पुल्टा किया तो मार देगा ना, जेलर है, उसके पास पावर है, अथॉरिटी है। लेकिन क्या किया, जब वर्ड को कहा सब लोग भागने लगे, he took that sword and tried to kill himself. He tried to kill himself. क्यों कर? Why was he killing himself? Thinking that अगर मैं खुद नहीं मारेगा, वैसे मेरे सीनियर मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने I was not able to keep them safe. मैं इनको साफ सेफ नहीं रख पाया, लोग को मैंने इनको बचा नहीं पाया, लोग सब लोग भाग गए। So he was about to kill himself. But Paul called with a loud voice saying, "Do yourself no harm." क्या हो गया? पॉल ने बोला कि यार खुद को कुछ कष्ट मत दे, don't do any harm. Why? क्यों? We are all here. पॉल बोला हम लोग भागे नहीं हैं, हम लोग सब यहाँ पे हैं, खुद को मत मार, खुद को harm मत कर, we are all here. तू टेंशन मत ले, we are all here. We are all here. क्या बोला? We are all here. Don't do yourself any harm. Don't do any harm. अभी मेरा प्रश्न है, देखो ठीक से सुनो। नेक्स्ट वर्स, देन ही कॉल्ड फॉर अ लाइट। कौन? जेलर लाइट मंगाया, एंड ही रैन इन एंड फेल डाउन ट्रेम्बलिंग बिफोर पॉल एंड सिलास। पॉल एंड सिलास के सामने घुटनों पे गया एंड ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, एंड बाइबल सेज एंड ही ब्रॉट देम आउट एंड सेड, "Sirs," क्या बोलते उसको? Sirs। अब कितने लोगों ने मेरा बुक पढ़ा, फियर अलाइव? फियर अलाइव अगर आपने बुक में पढ़ा, आप कुछ याद है क्या? सर्स करके कुछ, मैं फियर ऑफ लाइव, मुझे लगता है फियर ऑफ अथॉरिटी करके एक टॉपिक था, उसमें मैंने आपको एक चीज मैंने बताया था कि वहां पे मुझे पुलिस लोगों ने पकड़ा था। मैं क्या कर रहा था, मैंने सिर्फ अंधेरी स्टेशन पे आई हैड प्रिंटेड पैम्पलेट्स that Jesus loves you and if you know you are not forgotten Jesus, ऐसा करके मैंने पैम्पलेट बनाया था। अभी भी मेरे फेसबुक पे कवर पेज पे वो पैम्पलेट उसका बनाया था, और मैं अंधेरी स्टेशन में मेरे लंच ब्रेक पे मैं वो सबको फ्री में बांटता था। लंच ब्रेक हर ट्यूसडे और थर्सडे को मैं अंधेरी स्टेशन में मैं बांटता था, और बांटने के बाद मेरा लंच ब्रेक हो गया और मैं जाता था मेरे ऑफिस को। ये मेरा हर ट्यूसडे और थर्सडे का मेरा ये था। एक दिन क्या होता है, अचानक मेरे को दो लोग आते हैं और बोलते ए भाई क्या कर रहे हैं, क्या बांट रहे हैं पेपर, क्या चीज है, दिखा मेरे को। मैंने दिखा, बोला भाई ये तो मैंने मेरे खुद के पैसे से प्रिंट किया है ये, और मैं ये दिखा रहा है आपको। बोले नहीं तुम मुझसे कुछ तो कर। बोले क्या कर रहा है, इधर लिखा है अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम है मेरे को कॉल करो, मैं प्रेयर करेगा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होएगा, यही तो लिखा है इसमें। बोला नहीं तुम चलो मेरे साथ। उन लोग लेके गए मेरे को पुलिस चौकी। अब बोले यार ये क्या कुछ गुनाह है क्या, पेपर बांटना क्या गुनाह है क्या, कुछ नहीं, बट लेके गए। बोले चलो। सो आई वाज देयर ऑन द वे, मेरे दिमाग में आया अरे यार चुपचाप से 100 रुपीज दे देगा, मैटर सॉल्व। क्या है मेरे दिमाग में, चुपचाप से 100 रुपीज देगा, मेरा मैटर सॉल्व, मेरे को ऑफिस में जाने का, इधर टाइम पास बहुत होएगा, अंदर लेगा 10 कहानी बोलेगा क्या किया वो किया, मतलब किधर पढ़ने के ऐसे झंझट में चुपचाप से 100 रुपीज निकलता देता, वो लोग लेंगे जाएगा। दिस इज व्हाट आई थॉट। हु थॉट? बोलो यू थॉट। ये मैं सोचा, मुझे लगा ऐसा। तो मैंने जिस सोचा लूप है, जैसा लेने गया मुझे होली स्पिरिट बोला 1 रुपया नहीं देगा। क्या बोला होली स्पिरिट ने? 1 रुपया नहीं देगा। तो मैं बोला अरे यार नहीं देगा, अभी मेरे को अभी 2 बज रहा है, मेरे को ज्वाइन भी करने का है, मेरा बॉस चिल्लाएगा, बोलेगा किधर है क्या है, 2 बजने आया। बोला अभी क्या करूं। और ऑफ सडन होली स्पिरिट मेरे पास बैग था, उसमें गिडेन के बाइबल्स भी थे। होली स्पिरिट ने मुझे इमीडिएटली वर्ड दिया, बोला टेल देम जॉन 3:16। क्या? जॉन 3:16। मैंने जस्ट उनको बोला, 3 लोग थे, मैं 2 ही थे और मैं एक और आया, 3 हो गए। मैंने जॉन 3:16 बोला। मैं बोला, वो लोग बोले ठीक है चलो जितना भी है दो, बाद में लोग कहीं आए जितना भी। मैंने उनको बोला प्रभु जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता एक पुत्र दिया
You know, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. मैंने कुछ नहीं, सिर्फ जॉन 3:16 बोला. जैसे मैंने जॉन 3:16 बोला, सुनो, this is the power of the word of God. जैसे मैंने जॉन 3:16 बोला, मैंने बुक में भी लिखा है, जैसे जॉन 3:16 बोला, वो लोग मेरे को बोले थे, ए इधर आ, ए उधर जा, ए हाथ में देखे, ऐसे बोल रहे थे ना, वो लोग इमीडिएटली सर बोलने लगे. क्या बोले? सर. वो डायरेक्ट सर बोले, सर थोड़ा साइड में आओ. मैंने अचानक सर कैसे बोला है? मेरे को तो ये इधर आ उधर जा अंदर तो बोले थे, आतश टाकतो तुम्हाला आतमध्ये, ऐसे बात चल रहा था. डायरेक्ट सर बोला. मैं बोला देखो, कुछ बोला, प्रभु ने काम चालू किया. मेरे को पता चल गया प्रभु का काम चालू है. मैं बोला देखो भाई, मेरे पास कुछ नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास बाइबल है, तुमको चाहिए तो बाइबल देता है. जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हम लोग वहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन था. ये लोग मेरे को बोलते, कौन? पुलिस, 3 लोग, एनवायरमेंटल पुलिस थे, ग्रीन कार्ड. मेरे को बोलते, नहीं तुम चलो, मैं तुमको खिलाएगा. मेरे को बोल रहे, तुमको खिलाएगा. मैं नहीं खिलाने, मेरे को जाने का है. नहीं अभी आओ हमारे साथ, हम तुमको खिलाएंगे. नहीं मेरे को नहीं खाने का है. नहीं हम खिलाएंगे, हम हमारा लंच टाइम है, आपको भी खाओ. मैं नहीं खाएगा मेरा टाइम. से नो वी विल गिव यू. ठीक है चलो, मेरे को चाय पिएगा मैं करके. सो आई वेंट विद देम. वी वर इन द होटल. हम लोगों ने मेरे को पनीर सब मंगाया. मैं कुछ नहीं खाया, मैं चाय पिया. फिर मेरे को लोग बोलते, तुम पहला आदमी है जो हम लोग तुमको खिला रहे. बोले तो पहला आदमी है जो हम तुमको खिला रहे. नॉर्मल हम ही खाते हैं इधर उधर, पहला आदमी है जो हम तुमको खिला रहे. ये कैसा हुआ? एंड बाय द टाइम, जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बाय द टाइम बिफोर आई लेफ्ट, we all 3 stood there, we all held hands and we all did the salvation prayer. And then I left for my work. Just see, अगर मैं 100 रुपया दिया रहता तो क्या हुआ रहता? वही तो बच गया रहता, मैं निकल गया रहता. And these 3 would have not been saved. They wouldn't know who Jesus is. They wouldn't know the love of God. They wouldn't have experienced the presence of God. But they did. They understood that this God is the true God. They understood this. अभी मालूम नहीं उसमें से 3 लोग में से कौन किधर प्रीचर रहेगा, क्या रहेगा, मालूम नहीं. ये बहुत 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 10-15 साल की बात. So God has done these things. When अभी मुझे ये आया इसलिए, okay, let's come back over here. And they said, this man, ये jailer ने बोला, sirs, what must I do to be saved? अभी आप सोचो, ये इसके पहले sirs बोला रहेगा क्या उनको? ये jailer उनको sirs कभी बोला रहेगा क्या? अभी वो लोग जेल में कौन है? पॉल और सिलास. वो लोग जेल में, ये जेलर है. जेलर को सर बोले सर बोले नहीं पाएगा. वो बोले अरे इधर है पॉल, अरे इधर है इधर है उधर. और जैसा प्रभु का कार्य देखा, वो बोला नहीं ये ऐसे नॉर्मल लोग नहीं है. सर्स, क्या बोला? सर्स. See the sirs, what should I do to be saved? Now my point comes here. इसको कौन बोला कि तेरे को कुछ तो करना पड़ेगा सेव होने के लिए? हेलो, इसने किसने बोला कि तुम कुछ तो करना पड़ेगा सेव होने के लिए? किसने बोला इसको? हेलो, आप समझ रहे कि नहीं? आप कुछ सीख रहे हैं. Who told him that he needs to do something to be saved? Who told him? See, he is asking the same question. He is saying, sirs, what must I do to be saved? मैं क्या करूं कि मैं सेव हो? क्या करूं मैं? Who told him कि कुछ तो करना पड़ता है सेव होने के लिए? Who told him? हाँ? This is a normal understanding of the world. कुछ तो करना पड़ेगा तेरे को, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा. You need to do something to be saved, to get blessing from God. You need to do something. कुछ नहीं करेगा तो कैसे God bless करेगा? You need to do something. He also had the same understanding. समझ रहे हैं? He had the same understanding. इसके लिए पूछ रहा है, sirs, Paul Silas पूछे, sirs, what should I do to be saved? Now listen to the answer of Paul and Silas, and this should be your and my response. क्या है वो पॉल और सिलास का रिस्पांस? क्या करने बोला? बोला पहाड़ पे चल. बोला जेलर पहाड़ पे चढ़, फिर ही तुमको ब्लेसिंग आएगा. या अपना चप्पल निकाल और घर पे ऐसे जा, या ऐसा नील करके जा, या खुद को चाबुक मार, या ऐसा कुछ तो कर, बाल निकाल, ये कर वो कर. कुछ बोला उसको, कुछ तो करने पड़े. क्या बोलते हैं? पढ़ो, रीड द नेक्स्ट वर्स. उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. हाँ, he said just believe. He didn't say do anything. He said अरे believe यार, अरे विश्वास करो सिर्फ. Jesus has finished on the cross. It is finished. Kingdom culture is we are living a life after the cross. All that you and I need to do is believe. मैं क्या करूं? अरे believe करो कि यीशु ने पूरा कर दिया है. तुमको और मुझे विश्वास से हम लोग जी सकते हैं. हम लोग we can live a victorious life because of the finished work of Jesus Christ.
So what you need to do is believe. हम बोलते नहीं मैं क्या करूं? इसलिए I was telling you yesterday, every time you want to do क्या करूं? मुझे क्या करना है? कुछ तो करेगा तो ही मुझे मिलेगा. Be at believe. If you have believed, then only you can be at rest. If you have not believed, you can never be at rest. यीशु क्रूस पे यीशु आए, हमारे लिए पाप लिए, क्रूस पर मरे, जी उठे, सब हो गया. अभी भी अगर अपन लग रहे कि in toil we will eat, in toil we will eat, hello, it's very late. It's very late. In toil you don't have to eat. Jesus has reconciled us back to the Father. Just as He is, so are we. We are not living a cursed life. You and I are living a blessed life. You are no longer कि मुझे करना ही पड़ेगा तो ही मिलेगा. नहीं, अगर तुम विश्वास करेगा तो सब आएगा. सब आएगा. हेल्थ आएगा, वेल्थ आएगा, ब्लेसिंग आएगा. When you believe, only believe. क्या करना है? वो करना का मेंटालिटी था of the curse. Believing is what the word says. Are you ready to believe? आज मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ. See, we have just started this. Are you enjoying this? Are you enjoying this rest? See, we have just started this. अब मैं बोल रहा हूँ आपको, we are going to go in deeper and deeper, and you will start living a complete rest life. I and you, we together will start living a complete life of rest. Rest is only possible when you believe in the finished work. God finished on the 7th day. That's why Adam could live a life of rest from the first day. Because you and I can live now, you and I can live a blessed life because Jesus said it is finished. Hello? Yes? You understand this? Okay, come, let's close eyes right now. और जो चीज आपने सुना अभी, I want you all to start thinking over it. चलो, let's think on it. Think on what you learned. Thank you, Jesus. Hallelujah. Think on what we learned. We learned from Genesis, 2 Kings, Acts, again Genesis chapter 1, then 2, and then 3. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Let's all be on our feet right now. So खड़े हो जाएंगे. And we just thank the Lord for helping us to know the truth. Bible says, you shall know the truth, and the truth which you know. That's why it says, you shall know the truth, and the truth will make you free. That means you shall know the truth, and the truth that you know can make you free. Thank you, Father. Let's all just thank the Father because of the finished work of Jesus Christ. You and I can live a blessed life. आप और मैं एक आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं. It's only because of the finished work, because of the love of the Father. It's only and only because of the love of the Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If anyone is sick among you, keep your eyes open now. Anyone sick among you, कुछ sickness है, कुछ disease है, कुछ भी है, I want you to, if you have anything, please come forward. Hallelujah. You want to see the power of God? See it now. Hallelujah. ऐसा नहीं कि बाद में इधर अभी का भी healing इधर अभी का भी. Amen. Come, if anyone is sick, come here. Come here. What's happening? So truth. Okay, come. Let's pray. Let's all believe for him, and let's pray.
Thank you, Father, we believe that because of this finished work of Jesus Christ, I speak, Philip be completely healed. Thank you, Father. So truth, I speak to you. Be healed completely in Jesus' name. I speak every pain to be gone right now in the name of Jesus. We've prayed, we have believed, and we receive it. Thank you, Father, for healing Philip. We receive this miracle, we receive this healing for him. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No, thank you. How do you say that? Are you healed or no? Huh? Is it gone or no? Yeah, try whatever you want to try do. Huh? See, tell people if it's gone. Yes. Huh? It's gone? Yeah. Now let's. Wait. ठीक हुआ है इधर का इधर. Really, this is really this is. It's really not. It's not. We're not joking. This is a miracle signs of God. Wow, praise God. Praise God. See, this is how God heals. Amen. This is how God heals. Let's close our eyes. Let's thank God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father, for healing him, Lord. Thank you, Jesus. And thank you, Father. We also pray right now. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you, Father, for your healing. Thank you, Father, for completely healing him. Thank you, Father, also for those who are here. If they are praying for anyone, their relatives, their friends, thank you, Father. We speak right now your grace, your love, your peace, and the healing right there in Jesus' name. Amen. We thank you, Father. We believe in the finished work of Jesus Christ, and we believe it is done. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. Amen. Wow. I want to hear that. Come here again. He said, wow, bola. Suna hai? There are people. Wow, क्यों बोला तू? Wow, क्यों बोला? Like I don't have anything now. 100% बोला? 100%, yeah. I was not able to speak that much, but now really I can speak actually. Praise God. Praise God. I when I just came, like I had that pain. I was not able to, even if you were seeing, I was sneezing my nose. But now I didn't have any pain actually. Praise God. Praise God. Amen. Oh, praise God. Amazing. See, this is how the Lord heals. What you have to do is, तो क्या करना पड़ा? You just believe God healed. Thank you, Jesus. That's it. Amen. This is the simplicity of the gospel. This is what gospel is. कुछ ज्यादा नहीं है. Believe किया, देखो. Jesus ने क्रॉस पर खत्म किया. Believe कर. ले benefit. Amen. Thank you so much. Yeah, praise God. Okay, now I want to tell you something. Okay, आप लोग खड़े रहो. Punishment नहीं है, लेकिन खड़े रहो. मैं आपको कुछ चीज़ एक बताने वाला हूँ. अगर जब आप खाना खाते हो, okay, now listen to this carefully, because the breaking of bread का very beautiful thing which the Lord spoke to me recently. I would like to share with you very quickly. जब आप खाना खाते हो, ना, चपाती खाए सपोज चपाती खाए, चपाती एक बार खा लेते आप, तो किधर है चपाती? वो चपाती है, आप खा लिए, चपाती किधर है? पेट में. पक्का पेट में चपाती है. सोचो क्या बोला. अगर चपाती खा रहे हो तो चपाती क्या होता है? इट इज ब्रोकन इनटू वेरियस पीसेस, और वो एनर्जी, वो जब चपाती का जो एनर्जी है वो सिर्फ पेट में जाता है क्या? टोटल बॉडी. मतलब अगर बच्चा जो छोटे से बड़ा ग्रो और अपन भी बड़े ग्रो हो रहे, मतलब इसके अंदर भी चपाती क्या रहेगा? ये हाथ में. हेलो, चपाती इधर भी क्या रहेगा, दाल इधर भी क्या रहेगा. यस और नो? It goes throughout the body, right? Now listen to what I'm going to tell you. Listen to this carefully. If you understand this and practically know this, I'll tell you, we can live a healed life every time. See this. If you have your Bibles, open your Bibles. खड़े ही रखो. कुछ punishment नहीं. मैं इतना देर खड़ा रहा, ऐसा कुछ matter नहीं है. Okay? Matthew, open John chapter 6. Open John chapter 6. John chapter 6, and I'm reading from verse 53. Okay? Listen to this carefully. John 6:53. Okay, I'll read from verse 47. Okay, मैं 47 से पढ़ रहा हूँ. John 6:47. Most assuredly I say to you, he who believes in me
has everlasting life. I am the bread of life. Your fathers ate manna in the wilderness and are dead. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. Listen to this. I am the living bread which comes down from heaven. If anyone eats of this bread, I am the living bread which comes down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. I read verse number 53. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink the blood, you have no life in you. क्या बोल रहा है Jesus? My body is a flesh. He said, unless until you eat the flesh and drink the blood, you have no life in you. Verse 54. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up. Okay, verse 55. For my flesh is food and my blood is drink. He who eats my flesh, verse 56. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, I live because of the Father. He who feeds on me will live because of me. This is the bread which came down from heaven. Now when his disciples came to them, उन्होंने बोले मुझे समझा नहीं, क्योंकि जीसस ने इतना ही बोल के खत्म किया. जीसस ने बोला ये मेरा शरीर है, ये ब्रेड है, इसको खाओ, शरीर को खाओ और मेरे खून को पियो. अगर ये सुनेंगे अपने को मालूम है कि ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड का बात चालू है. अभी अपन बहुत टाइम आफ्टर द क्रॉस बहुत साल के बाद अपन अभी चर्च में बात कर रहे हैं. तभी when they were there with Jesus, उनको क्या लगता रहेगा? जीसस बोला मेरा फ्लेश खाओ, मेरा ब्लड पियो, क्या लगता रहेगा उनको? Jesus is there. He is telling me, eat my flesh, drink my blood. You will have eternal life. You will have everlasting life. मेरा flesh खाओ, खून पियो मेरा. हाँ? मेरा flesh खाओ, खून पियो. मैं बोले कैसे लगेगा तुमको? ये क्या बात कर रहे हैं यार? मेरा खून पियो, flesh खाओ. ये लगता ना? क्या बोल रहे हैं? The disciples नहीं समझा. वो लोग जीसस के बारे में क्या बात कर रहे हैं जीसस साहब? इसमें कभी आ रहा है इसमें क्या है तुम्हारा हैदराबादी हिंदी में क्या बातें कर रहे हैं जीसस बोलते नहीं बोलूँगा. क्या बातें कर रहे हो? मेरा फ्लेश खाओ बोलते हैं, खून पियो बोलते हैं, क्या चल रहा है? वो लोग पूछे जीसस को. Just think now, when you have eaten the चपाती आपने खाया, it became a part of you. हेलो, जब चपाती आपने खाया, it became part of your body, no? When you had दाल, जो भी खाया, it became part of you. पेट में इतना नहीं रुकता. पूरा का पूरा चपाती पेट में अब खाया तो पूरा पेट में चपाती नहीं आता आपका राउंड. It goes in your entire body, right? So it becomes a part of you. Now what we are going to do the breaking of bread. 1 Corinthians chapter 11. Come fast. I want you to understand this. Come to 1 Corinthians chapter 11. And this is what Paul is saying. I received from the Lord that which I also delivered to you. That Lord Jesus on the same night in which he was betrayed, he took the bread. So Jesus ने क्या किया during the breaking of bread? He took the bread. Can you please bring that? He took the bread. Now we are all going to break and we are all going to eat from this, okay? Thank you. See, what Jesus did is, he took the bread, when Jesus had to distribute, he took the bread, he broke it and he said, this is my body, ये है मेरा body. Now when you are doing this, understand that you are eating of his body. Hello? You are eating of his body. अगर आपने वो चपाती खाया, वो दाल आपने पिया, चपाती खाया, तो अभी वो किधर है दाल चपाती? It becomes one with you. Hello? It becomes one with you. That means you eating the flesh and you drinking the blood. Jesus becomes part of you. Jesus becomes part of you. You become one with Jesus. Jesus को आपसे separate नहीं कर सकते. Hello? You cannot separate Jesus from you. It becomes a part of you. This is what is breaking of bread. This is what is breaking of bread. Hello, are you understanding this? He broke this and he said, take, eat, this is my body. Take it, it is my body. मेरा flesh, eat my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Do this, जैसे आप याद करते हो, do this, because as you eat this,
You are eating my flesh. You have become one with Him. Hello? You have become one with Him. As you drink this, last time as I told you, in the Old Testament, Old Covenant, the bulls of goats, cow, bulls, ये सब Old Testament, Old Covenant इसके ऊपर depended था. The blood of bulls and calves, goats and वो सब था. But you and I, for us, it's dependent on the blood of Jesus. We are on the new covenant, a covenant which is based on the blood of Jesus. When you are eating this, drinking this, you become one with Him. क्या Jesus बीमार था? क्या Jesus बीमार था? हाँ? Jesus बीमार नहीं था. Bible says, as He is, so are you. अब ये इधर आया, इधर वापस से सॉरी वापस बुला रहा है. इधर आ. Philip, please come here. इसका ट्रोथ पेन था, राइट? इधर ट्रोथ पेन था, आपके सामने ही था नहीं कि मैं इसको अलग से बुलाया, इसको पहले बोल के भाई ट्रोथ पेन है क्या ये है, मैं आपको सामने पहले देख रहे हैं इसको ट्रोथ पेन था, डायरेक्टली प्रेयर किया 100% हील हो गया, राइट? एंड ही वाज शॉक्ड, अरे आई कुडंट स्पीक, नाउ आई एम स्पीकिंग. डिड इट हैपन? रियल? व्हाट डज दैट मीन? थैंक यू. व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? That means God wants us to be in health. It means God wants us to live healed. He does not want us to live in sickness. He does not want us to live in fear, not in poverty, not in lack, not in torment. He wants us to live victoriously starting from this earth. So when you're eating and drinking this, you become one with Jesus. Just think, as you eat this, you're eating of His flesh, drinking from His blood, you become one with Him. Come, let's do this together. As we eat this together, I thank you, Father. I bless this. As we all eat this together, Lord, we all will have this mindset that we are becoming one with you. Hallelujah. One with you, Lord. Thank you, Jesus. One with you. Thank you, Father. As we eat this, there's not going to be any one person who is going to be sick here, Lord. Not through kingdom culture, through the through your finished work on the cross. We all believe, Lord, not one person is going to be sick because of the finished work of Jesus Christ. Not one person is going to be in lack because of the finished work of Jesus Christ. Not one person will live in stress because of the finished work of Jesus Christ. We will live in peace, we will live in prosperity, we will live in divine health, we will live in abundance because of the finished work of Jesus Christ. Thank you, Lord, that it is finished. And we receive it. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's eat this together. Let's drink it. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's thank Him. Let's thank Him for His plan for you, that He wants you well. Thank Him that He wants you healed. He wants you delivered. He wants you blessed. It's His desire that you live a blessed life. God wants you to live a blessed life. He made everything ready for Adam. And He told Adam not to toil. It was him to eat and be there and enjoy the rest. Curse what toil. And curse was taken when Jesus became cursed on the cross. He became cursed so that you and I become the righteousness of God in Christ Jesus. Hallelujah. The curse is taken. You don't have to eat and toil now. You can eat and rest. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus.